سے پہلے اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ وہ کام جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، وہ بہت سے کام ہیں۔ ان میں سے چند چنیدہ کاموں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ میں نے 21 کاموں کا نوٹ لیا ہے، لکھا ہے نوٹ پہ 21 کام، اور بہت سے کام ایسے ہیں جو لوگ اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ چند ضروری مسائل، بہت جاننے کی باتیں، بہت اہم اور پوائنٹ کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مسائل آپ اگر دیکھنا چاہیں تو حاشیۃ التحتوی میں صفحہ نمبر 238 پہ، فتاوی شامی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326 پہ، فتاوی عالمگیری پہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بھول کر کھانا پینا یا جمع کرنا۔ بھول کر، روزہ یاد ہی نہیں تھا، روزہ بالکل ذہن میں نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، اور کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، پیٹ بھر کے پانی پی لیا، یا بیوی سے ہم بستری کر لیا، بیوی کو بھی یاد نہیں تھا، شوہر کو بھی یاد نہیں تھا، کسی کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ جس کو یاد تھا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، پھر کفارے کا مسئلہ بھی آ جائے گا، اس لیے وہ الگ مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے، بھول کر کھانے پینے سے یا بیوی سے صحبت، جمع، ہم بستری کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بھول کر۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ مسواک کرنے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسواک میں جو ذائقہ ہے نا، مسواک آدمی دیکھیں کبھی کسی درخت کے مسواک پہ اگر آپ کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں تو اس میں جو ایک ذائقہ، جو مزہ ہے نا، وہ حلق پہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ مسواک کے ذرات، چھوٹے چھوٹے ذرات کبھی کبھی وہ بلا اختیار حلق میں اتر جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، مسواک نہیں کرنا چاہیے، مسواک کرنا روزے میں اچھا نہیں ہوگا، اس میں مزہ آ جاتا ہے، منہ پہ ایک طریقے کا مزہ لگنے لگتا ہے، منہ میں جو بو ہے، منہ میں جو حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے مسواک کر دینے سے بو ختم ہو جائے گی منہ کی، اسی لیے مسواک نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط مسئلہ ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ مسواک کیا ہے کہ میں اس کو گن نہیں سکتا، میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ سوچئے لوگوں کی سوچ کتنی غلط ہے، لوگ کتنا اپنا دماغ لگا کر کتنا غلط سوچ رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے، مسواک کرنے میں، ہزاروں بار بھی مسواک کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے پہ آپ کے، اور مسواک کے چھوٹے چھوٹے ذرات بلا اختیار اگر حلق کے چلے جاتے ہیں تب بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، سرما لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اسی لیے سرما لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ آنکھ میں، دونوں آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں روزے کی حالت میں۔ کسی کا سرما اتنا تیز ہوتا ہے، سرما لگانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ دماغ اس کا ٹھنڈا ہو گیا ہے، بالکل کول ہو گیا ہے دماغ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سرما لگانے کے بعد حلق میں لگتا ہے کہ ارے حلق بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے، حلق میں اس میں مزہ آنے لگتا ہے حلق پہ سرمے کا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی روزے کی حالت میں سرما لگانا بالکل جائز ہے، روزہ آپ کا صحیح سالم اور درست ہے۔ اب اس کے بعد سمجھیے، نمبر 4، آنکھ میں دوا ڈالنا، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، سیم سرمے کا جو مسئلہ ہے۔ نمبر 5، خوشبو سونگھنا۔ اگر کوئی خوشبو ہے، عطر ہے یا پھول ہے، پھول کی خوشبو کو یہ سونگھ لیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا جہاں تک خوشبو، لیکن خوشبو ایسی ہو جیسے اگربتی کا دھواں، اس میں بھی خوشبو ہے، وہ تو ایک دھواں ہے، دھوئیں کا مسئلہ الگ آ جائے گا، لیکن یہاں عطر یا پرفیوم یا اسی طرح کوئی اور پھول وغیرہ ایسے ہیں جس کو سونگھ لیتا ہے، اس میں جو خوشبو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل اس کا درست ہے، اس طرح روزے کی حالت میں کرنا۔ نمبر 6، انجیکشن لگانا، سوئی لگانا، یہ بھی بالکل جائز ہے روزے کی حالت میں۔ اگر سوئی اس طرح لگائے کہ وہ سوئی بالکل ڈائریکٹ دماغ تک پہنچ جائے، ڈائریکٹ دماغ میں لگایا جائے،
या डायरेक्ट पेट में लगाया जाए कि पेट के अंदर तक पहुंच जाए, मैदे तक पहुंच जाए, वो फिर मसला दूसरा है। लेकिन सुई इस तरह कहाँ कोई लगाता है, वो तो बहुत आला दर्जे का इलाज हो तब होता है मामला ये। वरना आम तौर पर जो सुई वगैरह लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं किसी ताकत के लिए, किसी बीमारी को दूर करने के लिए हाथ पे या पीठ पे या कहीं और लगाते हैं, तो वो जायज है, लगा सकते हैं, रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रोजा बिल्कुल दुरुस्त है। और नंबर 7, ग्लूकोज चढ़वाना। अभी देखेंगे कोई बीमार पड़ जाता है तो सालाइन लगा देते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, बोतल ऊपर लटका देते हैं, नली के जरिया पानी आता रहता है और उसके जिस्म में जाता रहता है हाथ पे, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कमजोरी दूर करने के लिए, रोजे में ताकत पैदा हो जाए, रोजे में जो जिस्म के अंदर एक तरीके की कमजोरी आती है उसको दूर करने के लिए इस तरह लगाकर दिन भर पड़ा रहता है ताकि रोजे का एहसास न हो, ये अच्छा नहीं है। फिर भी रोजा हो जाएगा लेकिन ऐसा करना मकरूह है, अच्छा नहीं है। लेकिन कोई जरूरत पड़ गई तो इस तरह ग्लूकोज चढ़वा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। नंबर 8, खून निकालना, चाहे खून टेस्ट करने के लिए हो या कोई आदमी किसी वजह से हाथ वगैरह कट गया, पैर कट गया, खून निकल गया, एक्सीडेंट हो गया, खून निकल गया, जिस तरह भी हो, खून अगर निकल जाता है, मुंह से, दांत से खून निकलने लगा, नाक से खून निकलने लगा, तो इस सब से रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की हालत में पछना लगाया है, खून निकाला है, अपने इख्तियार से खून निकाला है। इससे पता चला खून निकलने से रोजा नहीं टूटता है। लेकिन हाँ, एक आदमी इतना खून निकाल रहा है जानबूझकर कि अब रोजे में इतना कमजोर हो जाए कि रोजा बिल्कुल उसको तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगे, ये अच्छा नहीं है, ये मकरूह होगा फिर इस तरह करना अमल। उसके बाद इसी तरह बिला इख्तियार, नंबर 9, बिला इख्तियार मक्खी या धुआं हलक में चला जाए, कोई इख्तियार नहीं, करके बैठा हुआ था, मक्खी आके घुस गई अंदर, या फिर जो है करके बैठा हुआ था, मच्छर घुस गया आके, या फिर धुआं, चूल्हे के पास औरत पका रही है, चूल्हे पे काम कर रही है, तो उससे कुछ धुआं निकल के खुद ब खुद, ये सूंघ नहीं रही है, खुद ब खुद अंदर जा रहा है, तो इससे भी रोजा नहीं टूटता है। लेकिन हाँ, जहां ये इख्तियार ले आए, जानबूझकर मक्खी पकड़ के खा ले, जानबूझकर धुआं जाके सूंघे, बहुत बहुत बेहतरीन ये सालन, बहुत खुशबू वाला सालन है, जाके सूंघ ले, और उसमें जो धुआं है वो नाक के अंदर चला जाए, मुंह के रास्ते, हलक के रास्ते, नाक के रास्ते अंदर चला जाए। या फिर अगरबत्ती, अरे बहुत बेहतरीन खुशबू है, जाके सूंघ लिया अगरबत्ती के धुएं को। अगरबत्ती को सूंघने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगरबत्ती का धुएं की बात हो रही है, धुआं सूंघ लेगा तो फिर गया, क्योंकि वो तो एक जर्रात है, धुआं नजर आने लगता है, वो अंदर जाएगा तो खत्म, रोजा टूट जाएगा। इसीलिए ये भी जरा जानने की बातें थी। इसी तरह नंबर 10, कान में पानी चला जाए, नाले में डुबकी लगा रहा था, नहर वगैरह में गुस्ल कर रहा था, कान के रास्ते पानी अंदर चला गया, इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, अगर कान के रास्ते से दवाई डालता है, पानी जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन दवाई अगर कान के रास्ते से अंदर जाए, दवाई कान में डाले, दवाई टपकाए कान में, रोजा टूट जाएगा। इसीलिए कान में दवाई और पानी का मसला अलग अलग है। और नंबर 11, खुद ब खुद कै हो जाए, और कै को वापस न ले, कै हो जाए बाहर फेंक दे, वापस ले लेगा, पी लेगा तो अलग से मसला आ जाएगा फिर वो। लेकिन कै खुद से हो, और जितनी कै हो जाए, मुंह भर के हो, न भर के हो, थोड़ा सी हो, इतना सारा हो, जितनी कै हो जाए, कई मर्तबा कै हो जाए, खुद से अपने इख्तियार से हलक में उंगली घुसा के कै कर रहा है, नहीं, खुद से कै हो रही है और वापस भी नहीं पी रहा है, सब बाहर निकाल के फेंक रहा है, इससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजा बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह एहतिलाम हो जाए, चाहे मर्द को एहतिलाम हो या औरत को एहतिलाम हो, यानी नींद की हालत में गलत सोच की वजह से, या कभी नींद की हालत में हम बिस्तरी वगैरह की वजह से, किसी और वजह से, शहवत भड़कने की वजह से नींद में आदमी बेदार हुआ, पता चला कि अच्छा जो है मैं नापाक हो गया हूं, एहतिलाम हो गया है, कपड़ा भीग गया है, तो जिस तरह भी हो, एहतिलाम अगर हो जाए, कई मर्तबा भी हो जाए, उससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एहतिलाम, जहां तक एहतिलाम के अलावा खुद ब खुद जानबूझकर मनी खारिज करना, जानबूझकर मुश्तजनी वगैरह करना, ये सब मसला अलग हो जाएगा फिर। इसी तरह नंबर 13, नफ्स पर यकीन हो,
गारंटी हो नफ्स पे, अपने आप पे यकीन हो, 100% यकीन हो, फिर वो आदमी बीवी से दिल लगी करने लगता है, बीवी से प्यार मोहब्बत से बातचीत करने लगता है, बीवी को अपने गोद में लेने लगता है, वगैरह प्यार की बातें करने लगता है। तो ऐसी सूरत में भी उसके रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोजे की हालत में ऐसा करने से रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, हम बिस्तरी हो जाए तो मसला खत्म, वो तो फिर कफारे वगैरह का मामला, रोजा टूट जाएगा। नंबर 14, मज़ी निकलना। जैसे मैं बता रहा था, बीवी से हम बिस्तरी कर रहा था, बीवी से दिल लगी कर, हम बिस्तरी का तो मसला दूसरा है, हाँ दिल लगी कर रहा था, ऐसी सूरत में मज़ी खारिज हो जाए, मनी नहीं, एक तो मनी वो है जिससे बच्चा पैदा हो जाता है, वो नहीं है, बल्कि बस चिपचिपा सा पानी शर्मगाह पे, औरत के हो या मर्द के हो, बस चिपचिपा सा जो पानी आता है, थोड़ा सा पानी, वो पानी के जो शहवत के साथ नहीं निकलता है, बल्कि बस ऐसे ही, जिसको हम मज़ी कहते हैं, मज़ी की तारीफ आप देख लीजिएगा नेट वगैरह पे सर्च करके, तो उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन इस तरह का अमल करना कि जिससे जानबूझकर इस तरह अमल कर रहा है जिससे मज़ी खारिज हो रही है, यह मकरूह है, अच्छा नहीं है। नंबर 15, कान का मैल निकालना। कान में मैल, कुछ जो है चीजें, कुछ सामान ऐसा है, कुछ कान के अंदर दाखिल करके कान से मैल बाहर निकाल रहा है। लोग ये समझते हैं कान के अंदर जो दाखिल कर रहा है, घुसा रहा है, उससे रोजा टूट जाएगा। गलत सोच है, ऐसी बात नहीं है। कान से मैल निकालने में कुछ अगर डाल के, कुछ तेल वगैरह डाल दिया, तेल भी डालने से कान में रोजा टूट जाएगा, इसलिए तेल मत डालिएगा। पानी का मसला अलग था, तेल और दवाई का मसला अलग है। कान में तेल डाल के फिर उसके बाद निकाल रहा है तो रोजा टूट ही जाएगा, क्योंकि तेल डाला है। लेकिन अगर ऐसे ही कान से मैल निकाल रहा है किसी और जरिया से, जो उसका आता है, छोटा छोटा चमचा रहता है, कान से निकालते हैं, हमने देखा है बचपन में भी, तो उससे रोजा नहीं टूटता है। नंबर 16, तेल लगाना। सर पे तेल लगाए, दाढ़ी पे तेल लगाए, चेहरे पे तेल लगाए, कई ठंडा ठंडा तेल, कुछ तेल ऐसे आते हैं सर पे लगा देंगे तो बिल्कुल आपका दिमाग ठंडा हो जाता है, इतना खतरनाक तेल होता है वो। उस तेल को लगाने से भी रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेल में जो खुशबू है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल मसला यह है कि तेल लगाने से आपका रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह नंबर 17, भीगा रुमाल, गीला रुमाल सर पे रखना या बार बार गुस्ल करना। रोजे में इतनी तकलीफ हो रही है कि वो बार बार सर पे जो है भीगा रुमाल को जो है कपड़े को गीला करके पानी पे भीगा के सर पे रख रहा है ठंडक हासिल करने के लिए। गर्मी के मौसम में बेताब हो रहा है, बार बार गुस्ल कर रहा है, एक एक घंटा गुस्ल कर रहा है गुस्ल खाने पे। तो ऐसी सूरत में भी रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रोजा दुरुस्त है, तो रोजा उसका सही सालिम है। इसी तरह नंबर 18, थूक निकलना। थूक निकलने से, अपनी ही थूक है, खुद की थूक है, निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रोजा उसका दुरुस्त है। लेकिन हाँ, थूक मुंह में जमा करके चप्पड़ चप्पड़ कर रहा है, लोग देख के कह रहे हैं क्या कर रहा है ये मुंह पे इस तरह, फिर उसको निकल रहा है, इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं है। लोग कहेंगे यार कैसा आदमी है ये, थूक मुंह पे लेके घूमता रहता है, ऐसा अच्छा अमल नहीं है, ये मकरूह है हर हाल में, रोजा रोजे के अलावा भी। तो थूक निकलने से, अपनी थूक रोजा नहीं टूटता है, लेकिन दूसरे की थूक हो, बीवी की थूक हो, बच्चे की थूक हो, या थूक निकाल के फेंक दिया फिर उसको चाट लिया, इससे थूक जबान से, मुंह से बाहर आ जाए, होंठ से जो तजावुज कर जाए, मुंह से बाहर खून आ जाए, जो है थूक आ जाए, फिर उसको वो पी ले, तब जाके रोजा टूटेगा। लेकिन थूक अगर मुंह के अंदर है और अपनी ही थूक है खुद की, इससे रोजा नहीं टूटेगा, चाहे जितनी मर्तबा पी ले, दिन भर थूक निकलता रहे, रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 19, बाल और नाखून काटना। सर के बाल हों या मूंछ हों या बगल के बाल हों, जेरे नाफ के बाल हों, रोजा की हालत में काटने में, साफ करने में कोई दिक्कत नहीं। दाढ़ी कोई काट रहा है, दाढ़ी एक मुट्ठी होने से पहले पहले दाढ़ी काट रहा है, तो ये काटना उसके लिए नाजायज था, गुनाह था। लेकिन कोई काट रहा है एक मुश्त होने के बाद, कोई दिक्कत नहीं, काटे, रोजे की हालत में भी रोजा उसका दुरुस्त है। या इसी तरह एक मुश्त से कोई पहले पहले रोजे में काट रहा है, या बिल्कुल दाढ़ी को सेव कर रहा है, बिल्कुल हटा रहा है, फिर भी रोजा उसका हो जाएगा। लेकिन ऐसा काम करना बड़ा गुनाह का काम है, और रोजे में, रमजान में ऐसा अमल करना जो गुनाह हो, वो तो गुनाह को और बढ़ा देगा, ज्यादा गुनाह मिलेगा रमजान में। इसीलिए दाढ़ी वगैरह से बिल्कुल परहेज करिए, दाढ़ी मत काटिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ है। नंबर 20, नाक सुड़कना। जुकाम नजला वगैरह हो गया, बार बार नाक पे पानी निकल के आ जाता है, फिर वो उसको खींच लेता है, फिर अंदर चला जाता है। इस तरह नाक में जो पानी निकल के आ जाए, बाहर निकाल के फेंक के सुड़केगा तो अलग मसला, लेकिन खुद से जो पानी अभी आया है बस उसको फिर सुड़क लिया, अंदर चला गया, उससे रोजा नहीं टूटता है। लेकिन ऐसा सुड़कना उसके लिए अच्छा नहीं है, लोग हंसने लगेंगे देखकर। नंबर 21, लास्ट है ये,
بچے کو دودھ پلانا، ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے، چاہے کئی بچوں کو پلا دے یا دن بھر دودھ پلاتی رہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، میں نے چند باتیں، بہت لمبی ویڈیو ایسے ہی ہو چکی ہے، اللہ سے دعا کریں، پیش کری ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔